it's my pleasure to introduce our guest for this expert lecture is Ms. Pooja Kumar, the founder and the director of Interact LLP, established in 2015. She is a professional in field of intellectual property law. Now I would like to invite Dr. Harvinder Kaur ma'am to come and please honor our honorable guest. Additionally, she is a registered patent agent and startup facilitator accredited by the Government of India with over 15 years of experience in this domain. Mrs. Pooja Kumar has made a remarkable contributions to the intellectual property rights awareness, having conducted for more than 200 programs on the subject. In the recognition of her exceptional work in the field, she was honored as one of the top women consultants in the year 2020. Her expertise and immense extent to collaborations with renowned institutions such as Gujarat Institute of Management, IIM, Kashipur, and so on. For the past decades, Mrs. Pooja Kumar has been actively mentoring startups in the field of life science, biotech, pharma, and engineering. Her influence extends beyond the borders of India as she collaborates via showcasing her expertise. Currently, she serves as a mentor for South Africa too. She has recently established a new enterprise called Inno IP Academy, which aims to assist students, inspiring to pursue a career in the fields of IPR. Now I would like to invite Pramod Kumar Goyal sir to come and please say a few words to us. Good morning to all. Dear Mataji, Madam Mamta, Madam Harvinder Kaur, our guest, Madam Pooja Kumar, and all of my dear students. Students, you know very well that we have established Institutions Innovation Council in our college under the requirement of AICT and mentorship of AICT, and in the same domain we are organizing these lectures. Today's session is on intellectual property rights with you. It's a very important part nowadays for any professional, any intellectuals who wish to further his career, whether it is in company or in academic works or in any area. Okay. So now when we have started the work on startups, our Prime Minister has a very good emphasis on doing जॉब करने वाले नहीं जॉब देने वाले बनो, है ना. सो ये जो फिलॉसफी है, वी शुड बिकम्स अ जॉब गिवर नॉट जॉब टेकर. ओके, सो मालिक बनिए. सो इन दैट फिलॉसफी द एनवायरनमेंट ऑफ स्टार्टअप इज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डूइंग दिस थिंग्स, व्हेन वी आर डेवलपिंग योर एनी प्रोडक्ट, it becomes your right, your property. And in that case, when you are developing and launching that product in the market, it certainly faces the competition. It required a uniqueness and a certificate that your product is certainly your property and is a unique property. Okay, so in that background, these property rights are very important. The patent says one area and property right. Once you get the patent, you get the property right. So like that, when you have our physical property, जैसे हमारे पास अपना own house है, own bike है, own cars है, these are the physical tangible assets. Okay, we say these are our properties, and we have the rights because we have purchased them. Okay, we have bought this thing. Similarly, whatever the intellectual property you create, whether in the forms of any contents, online contents, offline contents, in your books, any paper, research paper, any products, any design, becomes your property. So how you can see that this is my property, I am the inventor? This is only because of these rights. जब तक आपको इनके बारे में पता नहीं लगेगा, you will remain
इन ए वेरी डार्क फील्ड। और फ्यूचर में आपका अच्छे से अच्छा इन्वेंशन अगर आपने उस पर पेटेंट नहीं कराया, IPR राइट्स नहीं लिए, तो एनीवन जो क्लेवर लोग हैं जिनके पास पैसा है वो उसको यूज करेंगे और उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे, उससे वो फायदा उठाएंगे, ना कि जिसने उसको डेवलप किया। सो आई थिंक एज ए यंग एंटरप्रेन्योर्स, you know our university is working on the field or philosophy of skill and entrepreneurship in that area. It is very important that you must know these things in a very deep manner. So today we are very fortunate that Madam Pooja Kumar, which is an astute professional in this field of IPR, is with us to give the lecture to you. So without taking much time, I invite Madam Pooja Kumar to take the lecture. Thank you. Very good morning to all of you. Good morning. मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शुरू करने से पहले कोई मुझे बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में सबसे ज्यादा पेटेंट किसके पास होंगे? IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल। वेरी गुड। गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा और Amazon के पास सबसे ज्यादा पेटेंट है, जो लास्ट 2022 का डेटा अगर हम इकट्ठा करें। ओके, तो आप मुझे कोई बता सकते हैं इतने सारे पेटेंट फाइल करने से Amazon को क्या फायदा होगा? वन क्लिक मेथड। डू यू नो कि जो Amazon का वन क्लिक मेथड है जिसमें हम जाके पेमेंट करते हैं, वो भी उनका पेटेंटेड है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। पेटेंट लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं? उसको सेल कर सकते हैं, सू कर सकते हैं। वेरी गुड। IPR में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, हम लोग पेटेंट पढ़ते हैं, डिजाइन पढ़ते हैं, कॉपीराइट करते हैं। वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ IPR। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बेसिकली मतलब है कि कोई भी आइडिया आपके दिमाग में है, चाहे वो फोन पे है, चाहे वो पेटीएम का ऐप है, चाहे गूगल पे है, तो आप चाहेंगे कि गूगल पे, पेटीएम मैंने इन्वेंट किया तो मैं इसको प्रोटेक्ट कर लूं ताकि इसकी राइट्स मैं एंजॉय कर सकूं। अब आप राइट्स कैसे एंजॉय करते हैं? कोई मुझे बताएगा कि पेटीएम का अगर कॉपीराइट प्रोटेक्ट हुआ या उसका कंसेप्ट अगर प्रोटेक्ट हुआ तो उसको क्या फायदा होगा? बताइए। मोटा वैसे कैसे आ रहा है? हाँ ठीक है। और हम लोग जितना उसको यूज कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? पेटीएम को। पेटीएम का एक्चुअल यूज कब आया? जब डीमोनेटाइजेशन हुआ। यस और नो? पहले पेटीएम ऐप तो कब से चलता आ रहा है, बट किसी को नहीं पता कि पेटीएम का यूज क्या था। और आज देखो आप, एक मोमोज वाला, टिक्की वाला, मतलब जो भी स्ट्रीट पे अपना दुकान लेकर के बैठे, दे आर यूजिंग पेटीएम। यस और नो? यस। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पेटेंट? सबसे पहला पॉइंट कि हम थर्ड पार्टी को प्रिवेंट कर रहे हैं, यू कैन नॉट यूज माय इन्वेंशन, राइट? सेकंड, हम कमर्शियलाइज कर रहे हैं उसको टू गेट द रॉयल्टी, टू गेट द बेनिफिट। यस। थर्ड बेनिफिट क्या है? आप खुद से अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। यस और नो? यस। पर कैसे? यस मैम, बड़ी जल्दी बोला, किसने बोला? रेज योर हैंड। अच्छा ये बताओ कैसे शुरू कर सकते हैं? पेटीएम का फाउंडर कौन था? विजय शेखर शर्मा, जिन्होंने उनको फाउंड किया। ओके, पेटीएम ऐप का डेवलपमेंट किया। और अगर स्टार्टअप नहीं शुरू होती तो क्या हम पेटीएम यूज कर पाते? नो। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट, आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से हैं? MCA, BTech, फाइन। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट लेवल कोई एक इन्वेंशन बनाते हैं, अब मैंने देखा होगा कि आपको देखा होगा कई हैकाथॉन इवेंट्स होते हैं तो बच्चे अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। यस और नो? तो आइडियाज जो होते हैं वो बिल्कुल अगर आपके नॉवल है, या आपने एक रोबोट बना दिया, आपने एक रिमोट से चलती हुई कार बना दी। यस और नो? तो हम लोग आइडियाज प्रेजेंट करते हैं, बट व्हाट इज द डिफॉल्ट इन दैट आइडियाज? क्या प्रॉब्लम होगी उन आइडियाज में? किसी ने सोचा है? कॉपी पेस्ट। दे आर जनरली कॉपी पेस्ट। जो आपके यहाँ पे इवेंट होगा तो वही सेम कॉलेज में इवेंट होगा तो सेम कार आपको वहां पे भी दिख रही होगी। यस और नो? नाउ इफ यू वांट टू फाइल अ पेटेंट, व्हाट इज द यूनिकनेस यू वांट टू इनकॉर्पोरेट इन दैट पेटेंट? टेल मी। अगर मैं बोलूं एक
लगा सकते हैं फैन में, और फैन के जो ब्लेड्स है उसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं, डिजाइन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, कैमरा लगा सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं चुप हो जाती हूँ। IoT, एक एक करके बोलिए। IoT based inventions. What is IoT? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो उसमें क्या फायदा करेंगे, फैन के साथ लगा के कैसे करेंगे उसे? स्मार्ट फैन बना देंगे। कैसे? मैं अगर रूम में आई तो फैन अपने आप ऑटोमेटिक चल गया, मैं रूम से गई तो फैन ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी इनोवेशन की बात कर रहे हैं, इन्वेंशन की बात करें, सबको हम किस में कैटेगराइज करते हैं? पेटेंट्स के अंदर। अब एक रिसर्चर के लिए मैं बता दूं पेटेंट्स की क्या वैल्यू है। हम जो जितनी रिसर्च करते हैं, हम लोग SCI ऊपर बहुत सारे पब्लिकेशन में अपना वर्क पब्लिश कर देते हैं, बट व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट इफ वी टॉकिंग अबाउट द पेटेंट ऑफिस सिस्टम? पेटेंट ऑफिस कहते हैं कि अगर आपने अपने वर्क को पहले ही पब्लिश कर दिया तो देयर इज नो मीनिंग टू फाइल अ पेटेंट, क्योंकि आप अपने वर्क को पहले डिस्क्लोज कर रहे हैं प्रायर आर्ट में। हैकाथॉन इवेंट में सबको आपने बता दिया मैंने ये इन्वेंशन बनाई है, ये ऐसे चलती है, ये ऐसे वर्क करती है। अब आपको कोई एक वहां जज आया और उन्होंने बोला कि भाई आपने बहुत अच्छी इन्वेंशन बनाई है, आपने इसका पेटेंट क्यों नहीं किया? तो आपने कहा सर पेटेंट तो बहुत लंबा प्रोसेस है, नहीं हम तो ऐसे ही ठीक है। तो पता चला उसी इन्वेंशन को किसी और ने कॉपी किया और सेम प्रेजेंट कर दिया। देन यू रियलाइज कि ये जो आइडिया था ये तो मेरा था। हाउ दैट पर्सन दैट स्टूडेंट हैज कॉपीड माय आइडिया। सो पेटेंट ऑफिस का कहना है कि आपको पहले डिस्क्लोज नहीं करना है अपना वर्क, पहले पेटेंट फाइल करो, उसके बाद ही आप उसको कहीं पे डिस्क्लोज करो। तो अगर आप किसी आइडिया को प्रेजेंट करने वाले हैं तो कम से कम एक प्रोविजनल पेटेंट फाइल कर दें। नाउ व्हाट इज प्रोविजनल कंप्लीट पेटेंट? प्रोविजनल का मतलब है कि अगर आपके दिमाग में सिर्फ आइडिया है कि मैं अगर फैन में IoT सिस्टम लगा दूं तो स्मार्ट बन जाएगा, तो उसको सिर्फ प्रोविजनल पेटेंट फाइल कर दें, उसके बाद 1 साल का आपको टाइम मिलेगा उसको कंप्लीट करने का। इट मींस द डे यू फाइल द पेटेंट द राइट स्टार्ट फ्रॉम दैट डे। ऐसा नहीं है कि पेटेंट ऑफिस अगर उसे 3 साल या 4 साल में पेटेंट ग्रांट कर रहा है उसके बाद ही आप किसी को लीगली सू करोगे, नहीं। दिस इज आप पेटेंट प्रोटेक्ट करते हो। अगर आज आपने मेरे को एप्लीकेशन दी, मैंने आज पेटेंट ऑफिस में फाइल कर दी, यू गेट द एप्लीकेशन नंबर। अब उसके बाद में कोई आपकी इन्वेंशन को चोरी करता है, यूज करता है, तो आज से आपके राइट शुरू हो जाते हैं। ओके, नाउ बैक टू द स्लाइड्स। चेंज करें। A, B, C, D में से कौन सा कॉम्बिनेशन यूज आ सकते हैं? A, very good. No, from all of the above. A, B, and D. Not C. मैं आगे बताऊंगी C क्यों नहीं है. Next. What is this? जुगाड़. देखो कितना अच्छा जुगाड़ है. लाइट बंद कर दो। बच्चों को क्या नहीं हो रहा ना? लाइट। IT कानपुर के स्टूडेंट्स ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसमें AC को और वोल्टेज को कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चपाती मेकिंग मशीन। ये तो बॉयज के लिए बहुत अच्छी है, नहीं अच्छी? Okay. So now what is the difference between जुगाड़ and invention? Can anybody tell me? कि मैंने जो आपको जुगाड़ दिखाए, तो अगर आप कोई जुगाड़ करते हैं तो उसका पेटेंट मिल सकता है क्या आपको? Yes, ma'am. मिलना चाहिए। अच्छा, क्यों मिलना चाहिए? पर मैम आइडिया हमारा क्या आइडिया क्या था? एक साइकिल थी, उन्होंने साइकिल के ऊपर सीट हटा के कुर्सी लगा दी। उसमें क्या इनोवेशन है? ओके, बट पेटेंट ऑफिस का कहना है कि ऐसे पेटेंट नहीं होते, ऐसे जुगाड़। क्यों? आपने क्या किया? रीअरेंजमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ रोड डिवाइसेस। चेयर ऑलरेडी किसी और की पेटेंट थी, ठीक है? आपने क्या किया? साइकिल भी किसी और का पेटेंट था, आपने बस उठा के वहां पे लगा दिया, तो इससे पेटेंट थोड़े ना हुआ। अब एक्चुअल में अगर पेटेंट करना है तो साइकिल में क्या इनोवेशन हम करेंगे जिसके हम पेटेंट ले सकते हैं? टेल मी। वेरी गुड। और चार्जिंग सिस्टम बना सकते हैं साइकिल में? यस।
जिसको हम बोलते हैं पीसीटी रूट। पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी के अनुसार इंडिया भी हमारी बाहर फाइल करना है तो पीसीटी रूट को फॉलो करके इंडिया से बाहर आना। चेन्नई एंड कैलकाटा 4 जुडिक्शन में हमारे पेटेंट ऑफिस कॉल करते हैं। किसी भी आपके एड्रेस के बेसिस पे हमारा पेटेंट ऑफिस डिसाइड करता है। अगर आप चेन्नई से हैं तो आपका जो पेटेंट ऑफिस होगा वो चेन्नई में जाएगा, ना कि दिल्ली में जाएगा। तो बेस्ड ऑन योर एड्रेस पेटेंट ऑफिस डिसाइड करता है कि आप किस जुडिक्शन में आपका पेटेंट फाइल होगा। So, what is the importance of branded and unbranded product? Brand gives you the quality, identification करता है, जो कि आपको बताता है कि लोकल प्रोडक्ट कौन सा है, नॉन लोकल प्रोडक्ट कौन सा है। Yes or no? Okay. Next, which is a real brand? Okay. Next, first and second. Next, who I am. I am the kitchen ingredient and known for medicinal properties. Turmeric, very good. I am an important device used by everyone to communicate with other person. Mobile phone. Very good. I am an important device used by everyone for a source of entertainment. I am a supplement which is used by everyone to build muscles. Protein shake. Next. Okay, इसमें आंसर से लिखिएगा। पीछे वाला बोलो। हाँ, तो इसमें आइडेंटिफाई करो वैसे तो आंसर्स लिखे हैं। मतलब से आंसर Nike, Kellogg, Starbucks, and Dell. Now, see, Starbucks का फेमस ब्रांड का यूज किया है कॉफी ब्रांड। यस, तो किसी को पता नहीं दिल्ली में किसी ने सरदार बुक्स नाम से बहुत सारे आउटलेट खोले। यस और नो? तो जब स्टारबक्स को पता चला कि इन्होंने हमारा ही लोगो कॉपी किया, हमारे मिलता जुलता नाम यूज किया, तो सीधा उन्होंने उसके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट केस फाइल किया। और गूगल सर्च करके देखना कितनी डैमेजेस पे करने पड़े उस स्टार्टअप को जो अभी शुरू हुई थी। सो नाउ हियर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टअप? देखिए, पेटेंट ऑफिस में कहना है कि अगर आप 4 लोग स्टूडेंट मिलके पीछे लास्ट बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मेंटेन करना है। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है। सबसे पहले तो आप एक नाम सोचेंगे अपनी कंपनी का, उसको रजिस्टर करेंगे एज ए LLP या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, 10 साल का उन्होंने 5 साल कर दिया कि 5 years इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, तो आप अपने आप को स्टार्टअप में कैटेगराइज कर सकते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपको अपना इनोवेशन बताना होगा पेटेंट ऑफिस को, अगर आप अपने आप को स्टार्टअप में रजिस्टर करना चाहते हैं। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस हियर कि आप अगर बताते हैं कि मेरा मोड ऑफ वर्किंग, लाइक मैं जो इनोवेशन कर रहा हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट है फ्रॉम द ऑलरेडी नोन प्रायर आर्ट, जो ऑलरेडी नोन प्रोडक्ट मार्केट में है, उसके बेसिस पे ही गवर्नमेंट आपको स्टार्टअप का सर्टिफिकेट देती है, जैसे हम DPIIT सर्टिफिकेट बोलते हैं। अब ये सर्टिफिकेट लेने के बाद अब इम्पोर्टेंस क्या है? अगर आप एक स्टार्टअप है और आप अपना पेटेंट करना चाहते हैं, आई एम स्टार्टअप फैसिलिटेटर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यू डोंट हैव टू गिव एनी प्रोफेशनल चार्जेस। लाइक एक पेटेंट की कॉस्ट हम लोग देते हैं तो 35 से 40 हजार लग जाता है एक पेटेंट को ग्रांट होने में, जिसमें ऑफिशियल और प्रोफेशनल फीस दोनों इंक्लूड होती है। बट अगर आप एक स्टार्टअप है, DPIIT का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको सिर्फ 1600 रुपए पे करने और आपका पेटेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट। ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करना है, अपने नाम को रजिस्टर करना है, तो 4500 आपको गवर्नमेंट फीस देनी होगी और 9000 अगर आप बड़ी कंपनी के नाम से रजिस्टर करना चाहते हैं तो दैट्स इट। तो गवर्नमेंट ये आपको कहती है कि अगर आप स्टार्टअप के थ्रू आते हैं, स्टार्टअप के थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, तो यू हैव टू ओनली बियर द गवर्नमेंट फीस। और कॉपीराइट को आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 500 रुपए में आपका कॉपीराइट प्रोटेक्ट हो जाएगा। एंड डिजाइन अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ 1000 रुपीज। तो आप ये देखो कि जहाँ आपको 10, 20, 30 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं, स्टार्टअप का आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आप सिर्फ 500 रुपए में, 1000 रुपए में अपना पेटेंट, कॉपीराइट और डिजाइन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Now what else? Now if you need some money for your startup, आप चाहते हैं कि मैम स्टार्टअप तो बन गया, पेटेंट भी हो गया, बट अब हमें अपने प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसे के लिए आप स्टार्टअप में भी अप्रोच कर सकते हैं, MSME में अप्रोच कर सकते हैं, जो आपको 15 लाख रुपए का फंड देती है। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैम हमारा आइडिया बहुत अच्छा है, हम इसको पेटेंट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमें फंड प्रोवाइड करे। तो फंड के लिए आपको स्टार्टअप का सर्टिफिकेट लेने के बाद फंड के लिए वही पे पोर्टल पे आप जाएंगे MSME के,
करेंगे, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, एक फॉर्म होता है। तो अगर आपका उनका आइडिया सेलेक्ट हो जाता है तो 15 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे अपने प्रोटोटाइप के लिए। और अगर आप इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर खोलते हैं तो उसके लिए मेरे ख्याल में 1 करोड़ का फंड मिलता है कि आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट स्कीम्स है। तो गवर्नमेंट आपको हर एक एंगल पे आपको एक हर स्टेप पे हेल्प कर रही है, प्रमोट कर रही है, स्टार्टअप को तो इतना बूस्ट कर रही है कि एक नई स्कीम है जिसमें लड़कियां अगर एक फीमेल फाउंडर है अपना पेटेंट एक्सपर्टाइज करवा सकते हैं। एक्सपर्टाइज कैसे? एक पेटेंट फाइल कर दिया आपने, 3-4 साल लग रहा है पेटेंट ऑफिस में ग्रांट होने के लिए। ग्रांट का मतलब है रजिस्टर्ड होने के लिए। बट अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट का नाम लिखना चाहते हैं कि आप अपने पेटेंट को स्पीड अप कराए तो आप अपनी फीमेल, चाहे आप अपनी मम्मी का नाम ऐड कर दो, चाहे अपनी सिस्टर का नाम ऐड, अपनी फ्रेंड का नाम ऐड करोगे तो बस आपको उनका वोटर आईडी देना होता है और आप अपने पेटेंट को एक्सपर्टाइज फॉर्म में लेके जा सकते हैं। अदरवाइज जो पेटेंट ऑफिस का क्राइटेरिया है कि अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है, एक स्टार्टअप है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो भी आप एक्सपर्टाइज को पेटेंट करवा के विदिन अ ईयर आपका पेटेंट ग्रांट हो सकता है। अभी हमारे रिसेंटली IIIT भागलपुर का पेटेंट 7 महीने के अंदर ग्रांट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन में फीमेल को इंट्रोड्यूस किया, एक्सपर्टाइज पेटेंट फाइल किया और 7 मंथ में, मतलब मैंने वो पेटेंट 25 अक्टूबर 2022 में फाइल किया था और अभी वो पेटेंट ग्रांट हो चुका है। तो ये स्पीड अप है पेटेंट ऑफिस का सिस्टम, थोड़ा बदल गया है कि आप अगर ये सोचते हैं कि पेटेंट ऑफिस में 4-5 साल लगते हैं ग्रांट होने में, नहीं, अब वो प्रोसेस नहीं है। ओके, नाउ बैक टू द स्लाइड्स। टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क जब हम करते हैं, पैटर्न्स को प्रोटेक्ट करते हैं, रिंग नहीं कर सकते। क्या आपकी कॉलेज का नाम अगर उनके लोगोस भी है, जैसे प्यूमा का लोगो होगा, एडिडास का लोगो होगा, लोगोस को भी आप अलग प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी आप ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करें तो पैटर्न मार्क भी है, जैसे एडिडास का जो लाइन्स आप देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स? कैन यू नो? किसी को पता है लोगो का मतलब क्या है? क्या सोचा उन्होंने एडिडास ये लाइन बनाने के? और आपने कितना सफिशिएंट में लाइन लगती है? हाँ बोलो, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करनी। वेरी गुड। दूसरा है कि इनका मीनिंग था कि लोग जब मेरे प्रोडक्ट को यूज करें, जब एक बार प्रोडक्ट यूज करेंगे तो बार-बार मेरे प्रोडक्ट को यूज करेंगे। यस और नो? बिकॉज ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ साउंड आपने रजिस्टर करना है। जब ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करते हैं तो एवरेज काम दोनों का सेम है। यस और नो? यस मैम। पर दोनों को ट्रेडमार्क मिला? एवरेज का ऑलरेडी एवरेज मिला या नहीं मिला? होगा या नहीं बताओ? बाय दोनों के क्लास। अच्छा, अगर मैं बोलूं हल्दीराम स्वीट की जगह हल्दीराम शूज का काम शुरू करने लग गया, हल्दीराम शूज, तो हल्दीराम को शूज तो मिलेगा ट्रेडमार्क? यस ना? होगा? यस। अगर जब हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो आज मैंने इनोव इंटरेक्शन जो प्रोटेक्ट किया, कल मुझे लगा कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हम लोग भी आईपीआर में करियर बनाना चाहते हैं और आप हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए आईपीआर में। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इनोव आईपी अकेडमी शुरू करें। मैं इनोव आईपी अकेडमी को रजिस्टर कर लेती हूँ और कल कोई कंप्यूटर आता है वो भी सेम आईपी अकेडमी वर्ड यूज करता है तो मेरे पास पूरे राइट्स होंगे उसको सू करने के, क्योंकि मैं अपनी क्लास में उसको ऑलरेडी रजिस्टर कर चुकी हूँ। तो आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप क्लास में भी अपने नाम को रजिस्टर करते हैं। जैसे टाटा स्टील, टाटा होम, टाटा सॉल्ट और टाटा क्या कर रहे हैं, टाटा की बाइक्स भी है, टाटा कार, ठीक है, तो टाटा मोटर्स। तो टाटा ने क्या किया कि एक पे नहीं फाइल किया, उसने अपने आप को वेल नोन ट्रेडमार्क में प्रोटेक्ट किया। वेल नोन ट्रेडमार्क का मतलब है कि कल को आप जो भी बिजनेस शुरू करेंगे वो ऑलरेडी इनका रजिस्टर्ड होगा। ऐसा नहीं है कोई ये बोले कि टाटा ने स्टील क्यों यूज का नाम वेल नोन कैटेगरी में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कल को मुझे नहीं पता कि मैं अपना बिजनेस किस लेवल पे एक्सपैंड करूं, तो आप अगर वेल नोन में प्रोटेक्ट करते हैं तो उसकी 1 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट फीस देगी। तो ये जितने बड़े ब्रांड्स हैं जैसे बजाज एलियंस है, बजाज मोटर्स है, बजाज, ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये आपकी खुद के न्यू इनोवेशन है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो मशीन लर्निंग है, कोई भी इनोवेशन जिसमें आप ये प्रूव कर देते हैं कि ऑलरेडी जो नोन इन्वेंशन है उसमें मैंने इसको मॉडिफाई किया है। मॉडिफिकेशन और जहाँ टेक्नोलॉजी, जहाँ सेंसेस की बात कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो पेटेंट ऑफिस कहेगा कि यस मैं इनको पेटेंट, हमारा टेक्निकल एडवांस है, तभी आपको पेटेंट ऑफिस पेटेंट ग्रांट करता है। पेटेंट के राइट्स 20 इयर्स के लिए दिए जाते हैं, 20 इयर्स के बाद ये पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। एप्पल के फोन हम जितना यूज कर रहे हैं, एप्पल की टेक्नोलॉजी जितनी हम यूज कर रहे हैं, 20 इयर्स तक एप्पल अपने राइट्स को एंजॉय करेगा, जितने लोग उसके प्रोडक्ट को यूज करेंगे उसकी रॉयल्टी वो कमाएगा। बट 20
या इस सैमसंग को जाके सू करें। तो हर एक पेटेंट के लिमिटेड राइट्स होते हैं, 20 साल के बाद ये पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेटेंट के राइट ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में आपने पेटेंट प्रोटेक्ट किया तो पूरे वर्ल्ड पे आपको पेटेंट मिल गया। तो आप बोले कि मैम मेरा तो पेटेंट प्रोटेक्टेड है, यूएस में ये पेटेंट कैसे यूज हो गया, ये तो मेरा ऑलरेडी इंडिया में था। तो पेटेंट ऑफिस का कहना है कि क्रॉस बॉर्डर पेटेंट करना है तो पीसीटी रूल फॉलो करना होगा। राइट्स इंडिया में प्रोटेक्ट किया तो इंडिया में ही प्रोटेक्शन मिलेगी। आप ऐसा नहीं है कि पूरी मोनोपोली पूरे वर्ल्ड पे ले, नहीं। तो और दूसरी कोई वर्ल्ड पेटेंट होता भी नहीं है। एक 135 कंट्रीज है जहां जहां आप उनको पेटेंट को फाइल कर सकते हैं। जब आप पेटेंट इंडिया में फाइल करेंगे तो 12 महीने के अंदर अंदर ही आपको हर एक कंट्री में अपना पेटेंट फाइल करना होता है। पेटेंट ऑफिस में टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी टाइमलाइन आपकी छूट गई, आपने उसको मेंटेन नहीं किया, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं उस पेटेंट को आगे लेके जाने का। ओके, नेक्स्ट, ये आईआईटी के स्टूडेंट्स ने कॉस्ट इफेक्टिव नेजो फिल्टर बनाया था। नेजो फिल्टर का यूज क्या कि जैसे कोविड में आपने देखा हम लोग मास्क यूज कर रहे थे, मास्क का भी डिसएडवांटेज क्या था कि बहुत देर तक हम उसको यूज नहीं कर पाते थे, दम ऐसा लगता था ना दम उठ रहा है हमारा। तो फिर हमने सोचा कि कोई नई टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके आईटी के स्टूडेंट्स ने सोचा कि एक नेजो फिल्टर बनाए जो नाक के ऊपर आपको लगाना है और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है उसका, ठीक है। और जितनी भी पॉल्यूशन हो रहा है आसपास दिल्ली में, आपने देखा कितना पॉल्यूशन हो रहा है, तो आपको पॉल्यूशन से बचाना है, जिसके लिए ये स्टार्टअप शुरू की। नेक्स्ट, नाउ अब आइडिया तो आ गया, बट अब क्वेश्चन है कि मैम हु कैन फाइल। आपने बोला मैम मैं एज ए स्टूडेंट पेटेंट फाइल कर सकता हूँ अपने नाम पे। यस, एज ए स्टूडेंट, एज ए फैकल्टी, एज ए रिसर्चर, एज ए ऑर्गेनाइजेशन आप अपने पेटेंट को फाइल कर सकते हैं। अब इन्वेंटर और एप्लीकेंट, जब आप पेटेंट फाइल करते हैं तो पेटेंट फॉर्म के अंदर दो कैटेगरीज होती है, एक होती है इन्वेंटर की, एक होती है एप्लीकेंट की। तो आप ये याद रखो कि सारे राइट्स एप्लीकेंट के होते हैं। तो अगर पेटेंट के फॉर्म में एप्लीकेंट में कॉलेज का नाम है तो इसका मतलब सारे राइट्स कॉलेज के पास है। अब आप बात करेंगे कि मैम कौन से राइट्स के पास है। एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, एक कॉलेज था गाजियाबाद में और उस कॉलेज के पास एक पेटेंट था लॉकिंग सिस्टम का। पेटेंट फाइल हुआ, पेटेंट पब्लिश हुआ किसी फैकल्टी मेंबर्स का, जो पेटेंट पब्लिश हो गया तो पेटेंट ऑफिस में जब पेटेंट पब्लिश हो जाते हैं तो कोई भी इंटरेस्टेड कंपनी उन पेटेंट को व्यू कर सकती है और चेक कर सकती है। तो एक लॉक की कंपनी थी, उन्होंने एक पेटेंट चेक किया कि ये जो टेक्नोलॉजी इस लॉक में यूज की है वो तो बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है, और वो पहुंच गए उस कॉलेज में जहाँ पे वो पेटेंट फाइल किया था उस इन्वेंटर में। तो उन्होंने कहा कि मैं ये टेक्नोलॉजी खरीदना चाहता हूँ और आप मेरी इन्वेंटर से मीटिंग करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एम्प्लॉय वो फैकल्टी तो यहाँ पे नहीं है, वो तो छोड़ के जा चुके हैं कॉलेज, बट आप बात बताइए क्या मीटिंग करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पेटेंट उस टेक्नोलॉजी में फाइल किया वो टेक्नोलॉजी लाइसेंस करना चाहते हैं अपने लिए और उसके लिए आप हमें राइट्स दे दीजिए। तो कॉलेज वालों ने जब उनके अपने लीगल कंसल्टेंट से उन्होंने पता किया, इन्वेंटर और एप्लीकेंट में कॉलेज के फैकल्टी का नाम था, ना कि कॉलेज का नाम। कॉलेज का नाम था उनके एड्रेस में। तब क्वेश्चन मार्क उठा कि अगर 1 करोड़ की टेक्नोलॉजी लाइसेंस हो रही है तो कॉलेज ने सोचा ये राइट्स हमें मिलने चाहिए क्योंकि सर तो एम्प्लॉय हमारे थे। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट यस पेटेंट में इंटरेस्ट शो कर दिया तो क्या करें, तो कोई रास्ता है कि हम उनके साथ कोलैबोरेट कर सके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज की आईपीएल पॉलिसी होती है, आईपीएल पॉलिसी में पहले से डिसाइडेड है कि अगर जो भी आईपी पेटेंट फाइल होंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो अगर एप्लीकेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है और इन्वेंटर उसमें अगर अपना शेयर मांगता है तो 70-30 या 60-40 का रेशियो हम रखेंगे। 60-40 का मतलब है कि कल को अगर कोई अरे सुन लो उसकी क्वेश्चन पूछ लो, तुम लोग तो पूछ रहे थे, पूछ रहे उसका तो देख लो। हाँ बोलो। हमने वो किसी ने पहले से रिजर्व कर रखा है, हमने पहले से पेमेंट है, तो मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं कैसे दूंगा? जब एक्सपायर हो जाएगा या तो तुम इसको तब यूज कर सकते हो जब 20 साल उसके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। या फिर तुम मुझे लाइसेंस कर दो कि आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो आप मुझे लाइसेंस कर दो। ओके, सभी को दे सकते हैं, अदरवाइज और पैसे नहीं खरीदे हुए लाइसेंस कर सकते हो। खरीदा अगर लाइसेंस कर देता है तो तुम ले सकते हो। ओके, हाँ मैम जो अभी आपने बोला कि खड़े हो जाओ। जो हमने कुछ भी
अभी आपने बोला कि हमने कुछ भी इन्वेंट करा है तो हम उसको एप्लीकेंट और जो इन्वेंटर है अलग अलग रख सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का और जो इन्वेंटर है वो। तो उससे हमको या यूनिवर्सिटी को क्या बेनिफिट होगा कि देखो दो ऑप्शन है, या तो जॉइंट एप्लीकेंट भी ले सकते हो कि आप चाहते हैं कि मैम मेरे को भी पूरे राइट्स मिले क्योंकि इन्वेंशन मेरा है, तो कॉलेज को भी रखो और अपने आप को भी रखो। बट क्योंकि आप एम्प्लॉय हो या स्टूडेंट हो इस कॉलेज के और कॉलेज की अगर एक आईपीआर पॉलिसी बनी हुई है तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियली सारा मैं बियर करूंगा, मुझे कॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है और ये पेटेंट मैं अपने नाम से चाहता हूँ, उसके लिए पहले आपको कॉलेज से परमिशन लेनी होगी तभी आप कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कि तुम्हें क्या बेनिफिट होगा अगर मैं कॉलेज का नाम कॉलेज की राइट्स देता हूँ। देखो पहली बात तो अगर आईपीआर पॉलिसी में लिखा है कि एप्लीकेंट हर हालत में, कोई चाहे स्टूडेंट पेटेंट फाइल करे, चाहे यूनिवर्सिटी पेटेंट फाइल करे, चाहे फैकल्टी, एप्लीकेंट कॉलेज ही रहेगा, आप एज इन्वेंटर रहोगे। बट उस पॉलिसी में ये भी लिखा होगा कि जब आप इसको लाइसेंस करोगे किसी कंपनी के साथ तो आपको 40 या 60% रॉयल्टी मिलेगी। तो उस बेनिफिट को देखते हुए तभी आप अपने राइट्स इनको दोगे। पर अगर हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है जो हाँ, भी इन्वेंट फिर करा, अपना कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ बोलो। जो वो होगी ना लड़की तो होगी यूज कर लेना माइक। हाँ बोलो बोलो। अगर फीमेल कैंडिडेट को रखते हो तो मैम ऑनर होनी चाहिए, मतलब ओनर, ये पार्ट में चलेगी। देखो पेटेंट ऑफिस का कोई मतलब नहीं है, पेटेंट ऑफिस का कोई मतलब नहीं है कि तुम उसे पार्टनर बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। बट अगर वो पेटेंट में है, देखो कोई भी पेटेंट में अगर वो है तो राइट्स तो वो मांगेगी ना, तो इसीलिए हम पेटेंट में जो नाम रखेंगे सोच समझ के रखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, पेटेंट में इमोशनली नहीं रखना नाम कि भाई ये मेरी फ्रेंड है चलो इसका नाम रख देते हैं। कल को पता चला कि तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हारे साथ डिच किया, तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हारा ही आइडिया लेके अपनी कंपनी शुरू कर दी उस आइडिया को लेके, तो तुम क्या करोगे फिर? तो बेस्ट है कि जिसके ऊपर ट्रस्ट है उसी का नाम डालो, ओके। जिसमें आप सिर्फ अपना शुरू रख दो वो खुद अपनी पॉलिश कर देती है। तो 2008 में 4 स्टूडेंट मेरे पास आए थे सेम आइडिया लेके, तो हमने उनको एडवाइस किया कि आप ऐसे पेटेंट करो, इनका डिजाइन भी फाइल कर सकते हो। तो ऐसे करते करते 2015 तक मेरा आईपीआर में एक्सपोजर रहा। देन आई हैव 2 डॉटर्स। नाउ द स्ट्रगल स्टार्ट कि भाई आप जॉब के साथ साथ बच्चों को भी आपको देखना है। तो नाउ व्हाट नेक्स्ट, कि अगर मैं जॉब कंटिन्यू रखती हूँ तो मेरी बच्चियाँ नेग्लेक्ट हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ। तो 2017 आई स्टार्टेड माय ओन फर्म इनोव इंटेलेक्ट फ्रॉम होम। तो मैंने अपने घर से ही शुरू किया, जो मेरी एफडी थी उसे मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया, कंपनी रजिस्ट्रेशन कराई और मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। सो काइट इंजीनियरिंग कॉलेज हमारी गाजियाबाद में सबसे पहला कॉलेज है। 2018 में आई साइन एमओयू विद देम एंड 2018 में जैसे मैंने काइट के साथ एमओयू किया तो शुभारती मेरठ से मेरे को कॉल आया कि मैम हम लोग भी अपना आईपीआर सेल में कुछ पेटेंट का काम करवाना चाहते हैं। शुभारती के साथ ही पैनल हुई, एमआईटी के साथ हुई, मणिपाल यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ, एक्सेस कॉलेज कानपुर, एनआईटी जालंधर। आप ये सोचो आज मैं घर से ही काम कर रही हूँ। लिस्ट इतनी बड़ी है कि कॉलेजेस में अगर बताऊँ आपको, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी जालंधर, एनआईटी कानपुर, एनआईटी रायपुर और आईआईटीज और पैनल बहुत सारे स्टार्टअप के साथ। तो ये सारी जर्नी मेरी घर से ही शुरू हुई, ठीक है। टेक्निकल स्टूडेंट ना होके अब मैं पेटेंट अटॉर्नी बन गई। मैंने देखा कि बीइंग अ पेटेंट एजेंट आपकी क्राइटेरिया जो है फुलफिल नहीं हो रही, कि अगर कोई कल को मुझे बोलता है मैम इसने मेरा डिजाइन चोरी कर लिया है तो क्या आप उस पर हेल्प कर पाएंगी। तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि कोर्ट में मैं एलिजिबल नहीं हूँ। पेटेंट एजेंट कैन एक्ट ओनली इन द पेटेंट ऑफिस। देन आई रियलाइज कि मुझे लॉ करनी चाहिए। तो 3 साल पहले मैंने एज ए लॉ में अपने आप को रजिस्टर किया। और हम लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, तो लॉ बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों को समझना। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लॉ करूँगी, बट मैंने लॉ की और मैं बड़े अच्छे मार्क्स से 60% से पास हुई। तो फाइनली मेरा लॉ हो जाएगा। नाउ आई बिकम अ पेटेंट अटॉर्नी फ्रॉम अ पेटेंट एजेंट। एजेंट से मैं अटॉर्नी बन गई। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटॉर्नी एंड एजेंट? एजेंट कैन ओनली प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस में आप ऐसे टेक्निकल, जब मैं पेटेंट आपका लेके जाऊंगी, हियरिंग होगी, कंट्रोलर के सामने मैं अपने केस को डिफेंड कर सकती हूँ कि टेक्निकल एडवांसमेंट क्या है मेरे इन्वेंटर की। बट अगर वही केस कोर्ट के अंदर जाना है तो वहाँ पे आप एज ए पेटेंट अटॉर्नी रिप्रेजेंट करोगे अगर आपके पास लॉ की डिग्री है।
तो नाउ आई बिकम लाइक मेरा ये लास्ट ईयर है, तो मेरी बातें कर लो पहले। बच्चों कितना अच्छा डिस्कशन है, आप लोग फालतू बातों में लगे हो, नो डिस्कशन। तो अब मैंने रियलाइज किया कि अभी मेरी लॉ हो जाएगी, और उसके बाद नाउ यू नो कि यूनिवर्सिटीज वाले बोल रहे हैं कि मैम आप हमारे पेटेंट एजेंट के साथ साथ लीगल एडवाइजर भी बन जाओ। सो यू नो कि ऐसा नहीं कि जो एजुकेशन आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि वो कहीं वेस्ट होती है, कहीं ना कहीं उसका यूज जरूर होता है। तो अब एज लाइक मैं भी आज 42 की हूँ, एट द टाइम ऑफ 42 आल्सो आई एम स्टडीइंग, ठीक है। अब लॉ के बाद मैंने सोचा कि मुझे पीएचडी करनी है, आईपीआर में पीएचडी करनी है, तो उसके लिए पहले मुझे एलएलएम करना होगा आईपीआर में, उसके बाद मैं पीएचडी करूंगी आईपीआर में। जो मेरे को अब इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जो कि मेरे को अगर मैं 2005 की बात करूँ तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था पीएचडी के अंदर। बट हर आईपीआर में देयर आर लॉट ऑफ केपीओज इन दिल्ली, लॉ फर्म्स है दिल्ली में जो बीटेक के स्टूडेंट्स को ग्रैब करती हैं। तो अगर आप बीसीए, एमसीए हैं, बीसीए हैं, naukri.com पे जाइए, अपना सीवी अपडेट करो, तो आप यू कैन बिलीव कि 25-30,000 से आपको जॉब ऑफर शुरू हो जाते हैं एज अ पेटेंट कंसल्टेंट। जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, चाहे विप्रो है, चाहे इन्फोसिस है, चाहे आईबीएम है, दे ऑल हैव आईपीआर सेल। तो आईपीआर सेल में हम लोगों को एज ए एजेंट चाहिए होता है कि जो इन्वेंशंस को इवैल्यूएट कर सके, ठीक है। तो आप एज ए स्टूडेंट, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस आईपीआर फील्ड। तो अगर आप आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक तो आप आईटी की ट्रेनिंग्स लें थोड़ी, वाइको के WIPO आप टाइप करना गूगल पे, DL101 के कुछ फ्री कोर्सेज हैं, फ्री सर्टिफिकेट्स हैं, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि आप अब किसी कंपनी में एज ए इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो अगर उसके पास आईपीआर का कुछ सर्टिफिकेट होगा तो आपको एक एडवांटेज मिल जाएगी। तो अगर आप आईपीआर में कुछ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जैसे मैं भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ पे आपकी स्किल्स को हम इम्प्रूव करते हैं कि अगर आपको जॉब चाहिए आईपीआर में तो आपको इतना सिखा देंगे कि आपको आगे इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो बेस्ट है कि अगर आप आईपीआर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पेटेंट एजेंट सबसे बेस्ट है। एजेंट बन जाएंगे गवर्नमेंट ऑथराइज सर्टिफाइड, तो आप कहीं पे भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। और यहाँ की एमटी के कुछ फैकल्टीज को मैंने भी पेटेंट एजेंट बनाया, और अभी भी मेरे जो ग्रुप है उसमें कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं जो एजेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई एज नहीं है, किसी भी एज में आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ओके, चलो, थैंक यू।